নমস্কাৰ কে নিউজ অসমৰ এক বিশেষ সংবাদ লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত মই ইমৰান। বৰ্তমানে অব্যাহত আছে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহত্যাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। বিশেষকৈ এই প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে বলিউডৰ উপৰিও ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনৰ যি আত্মহত্যা, এই আত্মহত্যাক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইখিনি সময়ছোৱাতে জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীৰ যি আত্মহত্যা, এই আত্মহত্যাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী চনু নিগমে। চনু নিগমে কৈছে বলিউডৰ অভিনয় জগতত বুলিয়েই নহয়, এতিয়া বলিউডৰ সংগীত জগততো এক প্ৰকাৰ দমনমূলক নীতি চলে। দমনমূলক নীতিৰ বাবে এতিয়া নৱাগত সংগীত শিল্পীসকলৰ মাজত আহি পৰিছে বলিউডত ঘোৰ অমানিশা। চনু নিগমে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত এটা ভিডিঅ' তেওঁ আপলোড কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, আৰু এই ভিডিঅ'টো তেওঁ সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছে যে বৰ্তমান সময়ছোৱাত বলিউডৰ সংগীত জগত চলে দুজন মাফিয়াৰ নিৰ্দেশনাত, যাৰ জৰিয়তে এক প্ৰকাৰ বলিউডৰ সংগীত জগতত তিষ্ঠি থকাটো যথেষ্ট পৰিমাণে জটিল হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে নৱাগত সংগীত শিল্পীসকলৰ বাবে। বিশেষকৈ সংগীত পৰিচালক, সংগীত শিল্পী, গীতিকাৰ, সুৰকাৰৰ, যাৰ ফলশ্ৰুতিত হয়তো সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ লেখীয়াকৈ অন্যান্য সংগীত শিল্পীসকলেও আত্মঘাতী হোৱাৰ যথেষ্টখিনি থল আছে। আমি পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ কে নিউজ অসমৰ দৰ্শকসকলৰ সন্মুখত এক বিশেষ সংবাদ। সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ যি আত্মহত্যা, এই আত্মহত্যাৰ পিছতে বৰ্তমানে অব্যাহত আছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বিশেষকৈ বলিউডৰ উপৰিও ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীৰ আত্মহত্যাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে, ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইখিনি সময়ছোৱাতে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী চনু নিগমে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহত্যাক লৈ নিজৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। তেওঁ কৈছে যে বলিউডৰ যি অভিনয় জগতৰ লেখীয়াকৈ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া একাংশ মাফিয়াৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বলিউডৰ সংগীত জগত, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এক প্ৰকাৰ ঘোৰ অমানিশা নামি অহাৰ উপক্ৰম হৈছে নৱাগত সংগীত শিল্পীসকলৰ বাবে। এই কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে কিছু সময় পূৰ্বে এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে তেওঁ ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰি, আৰু এই ভিডিঅ'টো তেওঁ কৈছে যে এইখিনি সময়ছোৱাত বলিউডৰ দুজন মাফিয়াৰ দ্বাৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে বলিউডৰ সংগীত জগত, যাৰ ফলশ্ৰুতিত যথেষ্ট পৰিমাণে আহুকালৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। এক প্ৰকাৰ অভাৱনীয় পৰিৱেশৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে নৱাগত সংগীত শিল্পীসকল, বিশেষকৈ সংগীত পৰিচালকসকল, কণ্ঠশিল্পীসকল, গীতিকাৰসকলৰ উপৰিও সুৰকাৰসকলো অভাৱনীয় আহুকালৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত তেওঁলোকৰ মাজত তীব্ৰভাৱে এক প্ৰকাৰ মানসিক অৱসাদ আহি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, এক প্ৰকাৰ মানসিকভাৱে ভীতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নতুন প্ৰজন্মৰ বলিউডত থিতাপি ল'ব বিচৰা সংগীত শিল্পীসকলৰ প্ৰতি। আৰু যি কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৪৬ বছৰীয়া জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী চনু নিগমে, তেওঁ কিছু সময় পূৰ্বে এটা বিশেষ ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগে, আৰু এই ভিডিঅ'টো তেওঁ সবিস্তাৰে তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে, আৰু তেওঁ কৈছে যে বলিউডত বৰ্তমান সময়ছোৱাত দুজন মাফিয়াৰ দ্বাৰা সংগীতৰ দিশটো পৰিচালিত হয়। তেওঁ কৈছে এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ চনু নিগমে যিটো ভিডিঅ' কিছু সময় পূৰ্বে আপলোড কৰিছিল, সেই ভিডিঅ'টোক লৈ তেওঁ কেতবোৰ বিস্ফোৰক ভাষ্য আগবঢ়োৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैंने बहुत दिन से वीलॉग नहीं किया, मैंने मूड नहीं था एक्चुअली। पूरा भारत कई प्रेशर से गुज़र रहा है। एक तो मेंटल और इमोशनल प्रेशर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद में, वो जो लाजमी भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि अपनी आंखों के सामने एक जवान ज़िंदगी को जाते हुए देखना आसान बात नहीं है, और कोई बहुत ही निष्ठुर होगा कि वो इस बात से अफेक्टेड ना हो। और ऊपर से फिर अभी इंडो चाइना का जो केस चल रहा है, और जो हमारे 20 जवान जो घंटों लड़ने के बाद में और तड़प के जो मरे हैं, आई डोंट नो वहाँ पे क्या कैजुअलिटी हुई है। मैं भारतीय हूँ, पर उससे ज़्यादा मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ,
एक इंसान हूँ आपकी तरह, तो मुझे दोनों ही चीज़ें ठीक नहीं लगती। मतलब ये क्या है चल रहा है, मारा मारी, इंसान को मारना, और ये चीज़ें समझदारी से भी हैंडल हो सकती हैं अगर इंसान चाहे तो, लेकिन हमारे वाले तो चाहते हैं शायद, लेकिन सामने वाला जो पक्ष है वो तैयार नहीं है, या उसके अपने एजेंडाज हैं कुछ। दुख की बात है, मेरी सहानुभूति सबके लिए है। मैं इस वीलॉग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ख़ासतौर से हमारी म्यूज़िक कंपनीज़ को, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोज़र के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो माहौल है म्यूज़िक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूज़िक में है अनफॉर्चुनेटली। और मैं समझ सकता हूँ कि बिज़नेस करना ज़रूरी है लोगों के लिए, और अपनी सब को लगता है कि हम रूल करें बिज़नेस को। क्या है कि मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंगुल से निकल गया। लेकिन जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं सबसे बात करता हूँ, कितनी लड़के लड़कियाँ आके मुझे बोलते हैं, सुनो भैया ये, सुनो भैया वो, सुनो सर ये, सुनो सर वो। मतलब बच्चे हैं वो, कल के आए हुए यार, परेशान हैं वो कि प्रोड्यूसर काम करना चाहता है, डायरेक्टर काम करना चाहता है, म्यूज़िक कंपोजर काम करना चाहता है, पर म्यूज़िक कंपनी बोलेगी ये हमारा आर्टिस्ट नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत बड़े हैं और आप लोग कंट्रोल करते हैं म्यूज़िक को, आप लोग कंट्रोल करते हैं कि रेडियो में क्या बजेगा, कंट्रोल करते हैं कि फिल्मों में, लेकिन ऐसा मत कीजिए। दुआ बद्दुआ बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये ठीक नहीं है। ये जो दो लोगों के हाथों में ताकत है ना, दो लोग हैं बस इंडस्ट्री के, म्यूज़िकली उनके दो कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ, इसको मत गवाओ। देखिए मैं निकल गया इससे ना, मुझे कोई गाने की इच्छा है पिछले 15 साल से, ना मैं कोई बहुत, इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी इन माई ओन वर्ल्ड, बट आई हैव सीन द फ्रस्ट्रेशन in the eyes and in the voice and the words of new singers, new composers, new lyrics writers. खून के आंसू होते कभी कभी। अगर वो मर गए तो आपके दिल पे, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा, आप पे भी प्रश्न चिन्ह आएगा। बी a little more kind please to the newcomers, because ये सब गंधर्व लोग हैं, सिंगर्स, कंपोजर्स वगैरह जो होते हैं, गंधर्व लोग हैं। इन पे इनको प्रताड़ित मत कीजिए, आप लोग इन पे थोड़ा सा इजी रहिए। मेरे साथ में ऐसे हो सकता है कि मेरे गाने मैं गा रहा हूँ और कोई बोल रहा है कि वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत गवाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ में भी कर रखा है। तो ये क्या है मतलब, अरे हाउ कैन यू यूज योर पावर लाइक दैट। मेरे कितने गाने मैंने गा रखे हैं जो डब हो चुके हैं, मतलब बोलते हुए भी मुझे एम्बैरेसिंग लगता है मुझे कि इट्स लाइक यू नो, बट दिस इज ह्यूमिलिएटिंग इजंट इट, बिकॉज आई डोंट आस्क फॉर वर्क। मैं तो नहीं बोला कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे बुलाओ गाने के लिए, तो मुझे बुला के, मुझसे गाना गवा के फिर मेरे गाना डब करना, दिस इज लाइक, मतलब या तो मैं बोलूँ कि प्लीज़ हेलो मुझे गाना गवाओ, मैंने कहा गाने के लिए, मैंने गाने के लिए नहीं कहा। आप मुझे बुलाते हो, मुझे गाना गवाते हो, फिर मेरा गाना डब कर देते हो। मतलब दिस इज फनी एज हेल, स्पेशली बिकॉज आई बीन वर्किंग सिंस 1991 in Bombay, and I've been working since 89 in the music industry. 89 से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे साथ में ऐसा कर सकते हो तो छोटे बच्चों के साथ में क्या कर रहे हो यार आप लोग। थोड़ा सा इजी हो जाए यार, ऐसे एक ही गाने को 9 लोगों से गवाते हो एक ही गाने को। ये क्या चल रहा है। You guys need to just chill and be a little kind to the humane. एक थोड़ा ह्यूमेन होना भी आवश्यक है कि नहीं है। आपको लगता है कि इतना इजी है एक सिंगर को कि वो उसने 10 गाने गाए, 10 के 10 गाने डब हो जाए उसके, फिर 11वें गाने में उसको बोले तुझे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। Isn't it wrong for the singers? Isn't it wrong for the lyrics writers to be paid pittance? Isn't it wrong for the music composers कि तेरा गाना, तू मेरी कंपनी में का आर्टिस्ट है तो मैं तुझे काम दूंगा, वरना तेरा काम कितना भी अच्छा हो मैं तुझे तेरे से काम नहीं करूँगा। ये थोड़ा ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। सो यू सी, आई एम डन विद दिस, बट प्लीज़ डोंट
torture the younger ones. Really, इतना अच्छा space नहीं है. Please step into their shoes and please try to understand. They need you. They need your help. They need your kindness. They need your grace. थोड़ा सा kind हो जाइए आप लोग यार, ऐसा मत कीजिए. Anyway, चलो. I hope कुछ लोग इस बात का बुरा ना माने कि सोनू निगम ने ऐसे बोल दिया और हमारे बारे में ऐसा बोल दिया. मैं जो कह रहा हूँ वो जो मैं देख रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ, और मेरे ख्याल से लोग इससे एग्री भी करेंगे. जो म्यूजिक कंपोजर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो सफ़र कर रहे हैं. मैं कह रहा हूँ इवन डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑल्सो आर नॉट हैप्पी कि उनको उनकी मर्जी का म्यूज़िक बनाने नहीं दिया जा रहा. ये भी ठीक बात नहीं ना. मुझे तो डायरेक्टर्स भी जब मिलते कहते सर हमको ये गाना चाहिए ही नहीं, पर म्यूज़िक कंपनी बोलते कि ये गाना हमको दे रहा. तो ये थोड़ा रॉन्ग है. क्रिएटिविटी दो लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए. It's enjoy the bliss of everybody's grace, everybody's music, everybody's talent, everybody. आप ही बताओगे तो फिर म्यूज़िक कितना कम छोटा हो जाएगा ना. पहले म्यूज़िक कैसे होता था? राज कपूर का अलग म्यूज़िक होता था, है ना, और ओपिनियर का अलग म्यूज़िक होता था, शंकर जयकिशन का म्यूज़िक राज कपूर के लिए अलग और बसंत बहार के लिए अलग. तो मतलब कितना सबका अलग, इतना वेरिएशन था पहले. अभी म्यूज़िक बड़ा संकुचित सा होता जा रहा है. तो और लोग सुसाइड ना कर लें, तो थोड़ा सा आप लोग काइंड हो जाइए. एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड लिव लाइक अ हैप्पी फ्रेटर्निटी. এয়া আছিল জনপ্ৰিয় অভিনেতা সোনু নিগমে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে আপলোড কৰা এটি ভিডিঅ', আৰু এই ভিডিঅ'টোত সবিস্তাৰে তেওঁ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বৰ্তমান সময়ছোৱাত বলিউডত কেনেধৰণৰ এক প্ৰকাৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে. তেওঁ সবিস্তাৰে কৈছে যে বলিউডৰ সংগীত জগত এতিয়া দুজন মাফিয়াৰ ঠাৰত নাচে, যাৰ ফলশ্ৰুতিত এক প্ৰকাৰ যথেষ্টখিনি অস্বস্তিত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নতুন প্ৰজন্মৰ সংগীত শিল্পীসকল, নতুন প্ৰজন্মৰ গীতিকাৰ সুৰকাৰসকল, যাৰ ফলত এতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত ঘোৰ অমানিশা নামি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে. এক প্ৰকাৰ এই দুই মাফিয়াৰ বাবেই যথেষ্ট পৰিমাণে মানসিক অৱসাদত দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বলিউডত থিতাপি লোৱা এক নৱাগত একাংশ সংগীত শিল্পীয়ে. আৰু এইদৰে এতিয়া সোনু নিগমে কৈছে যে কেৱল বলিউডৰ অভিনয় জগত বুলিয়েই নহয়, সংগীত জগতখনতো এতিয়া প্ৰবল মাফিয়াৰ কৰাল গ্ৰাসত পৰাৰ কথা তেওঁ কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে. হয়তো এইদৰে যদি মাফিয়া ৰাজ চলি থাকে বিশেষকৈ বলিউডৰ সংগীত জগতত, সেইখিনি সময়ছোৱাতে আগন্তুক সময়ছোৱাত যে বলিউডৰ কোনো সংগীত শিল্পী এনেধৰণে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ লেখীয়াকৈ আপোন ঘাটি যে নহ'ব, সেই কথা কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰি. এই কথাকে তেওঁ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগে সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে.